Morning, students. It is your geography period, chapter 4, climate, part 6. The topic is the seasons of India, part 2nd. We have studied the seasons of India, part 1 in previous video. In this video, we shall study about the seasons of India, part 2nd, the Bay of Bengal branch, southeast monsoon. We have studied the Arabian Sea branch in previous video. In this video, we shall study about the Bay of Bengal branch of southeast monsoon, southwest monsoon, and the retreating monsoon means post monsoon. The Bay of Bengal branch is divided into two sub branches after striking eastern Himalayas. बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है हिमालय पहुंचने से पहले दो भागों में डिवाइड हो जाती है. वन ब्रांच ऑफ द बे ऑफ बंगाल ब्रांच मूव्स टूवर्ड्स द ईस्ट नॉर्थ direction and cause heavy rainfall in Brahmaputra Valley and northeast of India. जो पहली ब्रांच होती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच की, यह जो है पूर्वोत्तर दिशा में घूम करके चली जाती है ब्रह्मपुत्र की घाटियों में, जहाँ पर यह पूर्वोत्तर की पहाड़ियों पर भारी बारिश करती है. द अदर ब्रांच मूव्स टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट एलॉन्ग द गंगा वैली एंड हिमालयाज रेंज, काजिंग हैवी एंड वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर वास्ट एरिया. बे ऑफ बंगाल ब्रांच की जो दूसरी ब्रांच होती है वह उत्तर पश्चिम की तरफ गंगा वैली तथा हिमालय क्षेत्र के पास जाती है और वहाँ पर दूर दूर तक काफ़ी बारिश करती है. इन दिस रीजन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट owing to progressive decrease in humidity of these winds. Due to the due to progressive decrease in humidity of these winds, the amount of rainfall decreases from east to west. ह्यूमिडिटी धीरे धीरे कम होने लगती है तो ये हवाएं जो हैं पूरब की अपेक्षा जब पश्चिम की तरफ चलती हैं तो बारिश कम हो जाती है. थर्ड, रिट्रीटिंग मानसून, जिसको हम द पोस्ट मानसून भी कहते हैं, पोस्ट मानसून सीजन. इट मीन्स विड्रॉलिंग ऑफ मानसून. It means withdrawing of monsoon. It is also known as retreating monsoon season. The southwest monsoon starts retreating means withdrawing by the first week of September from northwestern India. Northwestern India, that is from the region where there is the last. Students, you know that the southwest monsoon
reaches in the last towards the northwest, na- northwestern India. That is why at the time of withdrawing monsoon, it starts from these regions where they reach last. Where they reach last means where their southwest monsoon reach in the last, they start withdrawing from those areas in the first week of September. It means this area is northwestern part of India. This retreat occurs due to weakening of the low pressure area over these area. It means when the northern plains and eastern part of India as well as western part of India, high pressure started and low pressure becoming weak. That is why the withdrawing monsoon started. जब भारत के उत्तरी मैदान में और इधर पूर्वोत्तर राज्यों में या पश्चिम क्षेत्र में जो हवा का दबाव होता है, लो प्रेशर हो जाता है और हाई प्रेशर बढ़ने लगता है, तो उस समय जो है मानसून की वापसी होने लगती है। इसी को हम रिट्रीटिंग ऑफ मानसून कहते हैं और यह सितंबर के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाता है। दिस इन टर्न हैपेंस ड्यू टू द फॉल इन टेम्परेचर causes by shifting of sun towards the equator and also due to the widespread rain which bring down temperature perceptibly. ऐसा क्यों होता है? लो प्रेशर कम होने लगता है, हाई प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा सन जो है वह इक्वेटर की तरफ खिसकने लगता है और जो है स्लांटिंग रेज पड़ना शुरू हो जाती हैं इन क्षेत्रों में, जिससे टेम्परेचर कम हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि अत्यधिक बारिश होती है इन क्षेत्रों में, जिससे टेम्परेचर अपने आप कम हो जाता है। इन दो कारणों के कारण लो प्रेशर कमज़ोर पड़ जाता है और हाई प्रेशर बढ़ने लगता है। इन्हीं कारणों से विड्रॉलिंग मानसून की होती है, रिट्रीटिंग होती है। These winds move away from most of northern India by the end of October. These winds move away from most of northern India by the end of October. That is why pleasant weather conditions prevail over this region during this period. It means at the time of withdrawing of monsoon in North India, neither very cold nor very hot weather, but there is pleasant weather. The low pressure conditions over northwestern part of India get transferred to the Bay of Bengal branch by early November. The low pressure conditions over northwestern India get transferred to the Bay of Bengal by early November. लो प्रेशर
कंडीशन जब नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में होता है तो यह ट्रांसफ़र कर देता है टू द बे ऑफ बंगाल बाई नवंबर। दिस शिफ्टिंग इज एसोसिएटेड with the occurrence of cyclonic depression which originated over Andaman Sea। ये जो शिफ्टिंग होती है मानसून विंड की नवंबर के मंथ में, तो इससे क्या होता है, साइक्लोनिक डिप्रेशन पैदा हो जाता है जिसकी ओरिजिन अंडमान सी होती है, अंडमान सी होता है। दी साइक्लोन्स जनरली क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड काज हैवी एंड वाइड स्प्रेड रेन। ये जो साइक्लोन्स होते हैं ये ईस्टर्न कोस्ट को क्रॉस करके पहुंचते हैं जहाँ जहाँ, वहाँ भारी बरसात दूर दूर तक होती है। These ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर ऑफन वेरी डिस्ट्रक्टिव। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं ये बहुत ही भयानक और हानिकारक होते हैं, विनाशकारी साइक्लोन्स होते हैं जिससे काफ़ी डैमेज हो जाता है इन क्षेत्रों में जहाँ पर साइक्लोन आता है। The coast of Tamil Nadu receives most of its rainfall during October and November। इसके परिणाम स्वरूप at the time of retreating of monsoon in the month of October and November cause heavy rainfall in the coastal area of Tamil Nadu। The deltas of the Godavari, Krishna and Kaveri are frequently struck by these cyclones। ये साइक्लोन जो आते हैं ज़्यादातर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का जो डेल्टा वाला भाग होता है वहाँ पर बहुत अधिक साइक्लोन्स आते हैं। दे आल्सो arrive at coastal region of उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। और इनका इफेक्ट जो है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में पड़ता है। यानी जो साइक्लोन्स आते हैं इनका इफेक्ट केवल गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टास पर ही नहीं पड़ता बल्कि इनका असर जो है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में पड़ता है। द बल्क ऑफ रेनफॉल ऑन द कोरोमंडल कोस्ट इज caused बाय दीज डिप्रेशन एंड साइक्लोन्स। इस तरह से साइक्लोनिक डिप्रेशन जो होता है इसके द्वारा कोरोमंडल एरियाज़ में जो ईस्टर्न कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट, वहाँ पर काफ़ी बारिश होता है और कभी कभी काफ़ी नुकसान भी होता है। ओके स्टूडेंट्स, योर क्लास इज़ ओवर।